Next question. On 1st of April, Fair Return Mutual Fund has following assets and the prices at 4 p.m. There are 3 securities A, B and C. Number of shares are 10,000, 50,000 and 10,000. Market price per share is 19.7, 482.6 and 264.4. There are 8 lakh number of units. Please calculate. There are 3 questions provided to us, A, B and C. I request you to give answer for the A part of the question in the chat box. Calculation of the current NAV per unit of the fund. Put your answer in the chat box, please. So I request all of you to write down answer along with me. Calculation of current NAV per unit. उसमें क्या किया जाएगा, जो भी हमारे शेयर्स है उसका मार्केट वैल्यू फाइंड किया जाएगा, वही हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा और वही हमारा नेट एसेट्स हो जाएगा, और उसके बेसिस हम लोग एनएवी पर यूनिट फाइंड करेंगे. सो कॉलम नंबर 1 इज शेयर्स, कॉलम नंबर 2 इज नंबर, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट वैल्यू. शेयर्स के कॉलम में मैं लिख रहा हूँ ए, नंबर में लिख रहा हूँ मैं 10,000. Market price per share is 19.7. That comes to 1,97,000. B, 50,000 into 482.6. C, 10,000 into 264.4. That comes to 26,44,000. So 50,000 into 482.6, that comes to 2 crore 41 lakh 30,000 plus 1,97,000 plus 26 lakhs 44,000. So the total of all of them comes to 2 crore 69 lakhs 71,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो यही हमारा नेट एसेट हो गया और नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट. इट इज 33.71. दिस इज द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट. This is the net asset value per unit. B question, assuming Mr. X, HNI, that is high net worth individual, sends a check of rupees 50 lakhs to fund, and the fund manager purchases 18,000 shares of C Limited and the balance held in bank, then what will be the position of the fund? That is a question. Everybody is requested to pay attention. देखो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको क्या आंसर देना है वो अभी हम लोग समझते हैं. इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए का फंड्स भेजा, तो क्या किया जाएगा, जो भी करंट एनएवी है 33 रुपीज 71 पैसे, टेकिंग दैट रेट एज अ बेस हम लोग उनको यूनिट्स इशू करेंगे. तो क्या किया जाएगा, 50 लाख डिवाइडेड बाय 33.71 करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इशूड. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकें, 18,000 शेयर्स सी लिमिटेड के हमने बाय किए. सो वी अंडरस्टैंड दैट से 18,000 इंटू 264.4, दैट कम्स टू 47,59,200. तो इतना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया. ये अमाउंट 50 लाख रुपए में से डिडक्ट किया जाएगा और बैलेंस हमारे पास बैंक का बचेगा. दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इज. Write an answer for the B question. Calculation of number of units
टू बी इश्यूड टू इन्वेस्टर, उसमें क्या किया जाएगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, amount of 50 lakhs upon 33.71, so 50 lakhs upon 33.71, so 1,48,323.94. So this is the number of units that will be allotted, first thing. With paragraph write down, bank balance of mutual fund will be rupees 2,40,800, ब्रैकेट में लिखो 50 lakhs minus 4759,200, another bracket write down 18,000 into 264.4, full stop. See question. Now suppose on 2nd April, देखो क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से हुआ था, 1st April से. नाउ अभी दे रहे हैं दैट से नाउ ऑन 2nd April, नेक्स्ट डे एट 4 PM द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज एज फॉलोज. हमको तीन कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रखे. व्हाट विल बी द न्यू NAV पर यूनिट, दैट इज अ क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट यू टू write answer for this question in the chat box. So write down answer along with me. Calculation of NAV per unit. Write down answer along with me. Column number 1 is like particulars, column number 2 is number of shares, third column is market price of the share, and the last column is amount. A कंपनी, उस पर हमने कितना दैट इज से कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 10,000. बी कंपनी उसमें 50,000. सी कंपनी उसमें पहले 10,000 किया था, फिर एडिशनल 18,000, सो कुल मिला के 28,000. मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 20 रुपीज़ 30 पैसे, सो इट इज 2,03,000. देन इट इज 513.70. So we understand that say 513.70 into 50,50,000, that comes to 2,56,85,000. 2,56,85,000. Next is say the investment made in C Limited, जिसका मार्केट प्राइस है 290.80. So we understand that it is 290.80 into 28,000. That comes to 81,42,400. उसके अलावा आएगा बैंक बैलेंस जो हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है. इट इज 240,800. सो ये हमारा हो जाएगा नेट असेट्स, क्योंकि कोई लायबिलिटी तो है नहीं.
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हमारे पास था 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस हमने एडिशनल इश्यू किया है ये नए इन्वेस्टर को, वी हैव इश्यूड देम द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 148,323 148,323.94. सो इन दोनों को ऐड किया जाएगा. सो द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 9,48,323.94. So net assets upon number of units will give NAV per unit. So now let us make the calculation of the total assets. 2,03,000 plus 2,56,85,000 plus 81,42,400 plus 2,40,800. So net assets comes to 3,42,71,200 divided by 9,48,323.94. So that comes to 36.14. That is the net asset value per unit. फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली हमको क्वेश्चन सीक्वेंशियली ही समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हमको ध्यान में लेना है. जिसमें जो एडिशनल यूनिट्स इशू किए उसको भी ध्यान में लेने का है, जो एडिशनल हमने सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसको भी ध्यान में लेने का है, जो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा उसको भी हमको ध्यान में लेने का है. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द नेट एसेट्स. दैट इज व्हाट से इंपॉर्टेंटली वी अंडरस्टैंड. और दूसरा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स टू बी इश्यूड टू द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया ना उसके हिसाब से उसको तुरंत ही यूनिट्स इश्यू कर ही देंगे. वेदर वी आर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट और नॉट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. क्योंकि हमको ऐसा लग सकता है कि मार्केट और नीचे जाएगा तो हम लोग अभी भी रुक सकते हैं वो पैसा कैश में पकड़ के, तो क्या अपने को बाद में ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे. चलो राइट डाउन अ स्मॉल नोट फॉर दिस. While doing third part of the question, comma, we have to consider comma information of first and second part. फुल स्टॉप. तो पूरे आंसर का एक समरी ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको सिंपल एनएवी पर यूनिट पूछा है. जितने नंबर ऑफ शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया जिसका प्राइस है और जितने यूनिट्स इशू किए उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है. कोई लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं है. हमने मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट किया, वही हमारा नेट एसेट्स हो जाता है. कोई भी लायबिलिटी तो है नहीं. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 8 lakhs, दैट इज द वे द एनएवी पर यूनिट इज फाउंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड. यानी एज सच हमको कोई बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सेकेंड पार्ट में करना नहीं है. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक हमने यूनिट्स इशू किए उसका कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट. दूसरा बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जितना भी पैसा हमको मिला है वो पूरा का पूरा हमने मार्केट में लगाया नहीं है. हमने 47,59,200 रुपीज़ बैंक दैट इज इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगाया है, तो बाकी का अपना बैंक बैलेंस होगा. एंड थर्ड इज व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बढ़ गए अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड शेयर्स. थर्ड क्वेश्चन में 2 अप्रैल यानी आफ्टर 1 अप्रैल, तो हमको ऐसा समझना है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू डू द थर्ड पार्ट, जिसमें जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है especially for C Limited we have 28,000 shares into market price per share, तो टोटल मार्केट वैल्यू मिलेगा. उसमें हम लोग बैंक बैलेंस को ऐड करेंगे
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट्स इश्यूड टू मिस्टर एक्स। ऐसा करके हमको NAV पर यूनिट का कैलकुलेशन करना है। दिस इज व्हाट इज द वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन।